یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ رسول خدا کی زندگی اور قرآن ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ ہم اسی کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ اگر دنیا چاہتی ہے کہ اپنی زندگی کو سنوارے اور دنیا میں امن قائم کرے تو وہ قرآن کے نقش قدم پر چلے، رسول خدا کے نقش قدم پر چلے۔ وہ ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا سنوار سکتا ہے اور آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ اب یہ جو جلانے کی بات ہوتی ہے، دراصل اس کو سزا ملنی چاہیے، اور یہ آئندہ کبھی بھی کوئی ایسی قرآن کے خلاف آواز بلند نہ ہو کہ اتنی خلاف جو قرآن امن کا پیغام دے رہا ہے دنیا کو، جو شانتی کا پیغام دے رہا ہے، جو دہشت گردی کو دنیا سے ختم کر رہا ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ قرآن دہشت گردی کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن نے پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا ہے، شانتی کا پیغام دیا ہے۔ ہم اسی کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو، دنیا کے راستوں کو ہم روشن کر سکتے ہیں، دنیا میں بھی روشن کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی روشن کر سکتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، دہشت گردی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ سماج میں، دنیا میں اگر امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کا دامن تھام لیں، رسول خدا کا دامن تھام لیں، دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی اور یہ آتنکوادی ختم ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر!
वहाँ पर रखते हैं। कुरान के खिलाफ अगर कोई कुछ कहे बुद्धि समेत खींच लो उसकी जबान को। वाह वाह वाह। एक हो के उस मलून पे सब भेजे लानत और फूंक दीजिए सभी उसके मकान को। वाह वाह। दूसरा शेर कि कुरान बचाना है, ईमान बचाना है, कुरान बचाना है, ईमान बचाना है और इसके मुखालिफ को मिट्टी में मिलाना है। खामोश ना बैठो, एक हो के कलमा गोयो, खामोश ना बैठो, एक हो के कलमा गोयो। अगर उस पर कुछ कहे बुद्धि समेत खींच लो उसकी जबान को। वाह वाह वाह। एक हो के उस मलून पे सब भेजे लानत और फूंक दीजिए सभी उसके मकान को। वाह वाह। दूसरा शेर कि कुरान बचाना है, ईमान बचाना है, कुरान बचाना है, ईमान बचाना है और इसके मुखालिफ को मिट्टी में मिलाना है। खामोश ना बैठो, एक हो के कलमा गोयो, खामोश ना बैठो, एक हो के कलमा गोयो। उस पादरी के धज्जी को मिल गया। अल्लाह ही उसकी हिफाजत करने वाला है। हम क्या कर सकते हैं? आज तक उसकी हिफाजत अल्लाह ही ने की है। दुनिया के हाफिज़ों कुरान से, पादरी से हम कहते हैं और ये चैलेंज है कि तू दुनिया के कागज़ों को जला सकता है, दुनिया के हाफिज़ों के दिल से हर्फ मिटा कर मिटा दे सकता है। ये हमारा चैलेंज है। ये चैलेंज क़यामत तक रहेगा, क़यामत तक रहेगा। और पूरी आलम इंसानियत को, कुरान के पूरे मुखालिफतों को, मुखालिफ करने वालों को ये चैलेंज है कि एक हर्फ को तो मिटा कर तो देखे। लेकिन आज तक दुनिया में एक हर्फ को मिटाने पैदा वाला न हुआ, मिटाने वाला न पैदा हुआ, न हो रहा है और न आइंदा होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कुरान पिछली मरतबा भी मुहाफिज था, हाफिज रहेगा, आज भी महफूज है और क़यामत तक इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। नारे तकबीर। આજ રોજ મહુવાના મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા ડેપ્યુટી કલેક્ટરશ્રીને પોતાની ધાર્મિક પવિત્ર લાગણી પ્રગટ કરવા માટે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું। મૂળ મુદ્દો એ છે કે અમેરિકામાં એક પાદરી દ્વારા 11/9ના રોજ આપણા પવિત્ર ધર્મગ્રંથ, મુસ્લિમ સમાજના પવિત્ર ધર્મગ્રંથ એવા કુરાનની હોળી કે એને બાળવાની જે પ્રક્રિયા માટે જાહેરાત સમાચાર પત્રોમાં અને મીડિયામાં આવી, એના કારણે સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજની લાગણી દુભાઈ એ એકદમ સ્વાભાવિક છે।
કોઈ પણ ધર્મ હોય એના ધર્મગ્રંથ પ્રત્યે તે ધર્મના લોકોને અત્યંત લાગણી હૃદયથી જોડાયેલી હોય છે અને એનું સન્માન રાખવું એ સમગ્ર માનવજાતની ફરજ છે. અને હિન્દુસ્તાનની સંસ્કૃતિ છે એ તો બધા જ ધર્મો પ્રત્યે સંભાવ રાખતી આવી છે. એટલે આપણે ત્યાં આપણા દેશમાં તો પ્રશ્ન જ નથી કે દરેકની લાગણી છે એનો ખ્યાલ રાખીને જ તે આ પ્રકાર પ્રમાણે આખી કાર્યવાહી થવી જોઈએ. પણ જ્યારે અમેરિકામાં થઈ રહ્યું છે ત્યારે અહીંયાનો મુસ્લિમ સમાજ એને વખોડી નાખે એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. અને એને લગતું જે મૌન રેલી દ્વારા આવેદનપત્ર આપવાનું હતું એમાં મને પણ ખાસ લાગણીથી નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. અને અત્રે ડેપ્યુટી કલેક્ટર શ્રીની કચેરી સમક્ષ જ્યારે આ આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે તે સમયે હું પણ આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય તરીકે મુસ્લિમ સમાજની લાગણી સાથે મારી લાગણી પણ નો સૂર પુરાવું છું. અને કોઈ પણ ધર્મગ્રંથ, કુરાન ધર્મગ્રંથની વાત અત્યારે છે, પણ કોઈ પણ ધર્મગ્રંથનું સન્માન જાળવવું એ દુનિયાની તમામ માનવજાતની ફરજ છે. અને એ ફરજ અદા કરવામાં અમેરિકન લોકો પણ ઓછા નહીં ઉતરે એવો મને વિશ્વાસ છે. અને એ લાગણી અમારી ત્યાં પહોંચશે એવી શ્રદ્ધા સાથે હું આ વાત જાણ. दरे रसूल पर आते हैं हल ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। रसूल खुदा की ज़िंदगी और कुरान हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। हम उसी के नक्शे कदम पर चलकर अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं। अगर दुनिया चाहती है कि अपनी ज़िंदगी को संवारे और दुनिया में अमन कायम करे तो वो कुरान के नक्शे कदम पर चले, रसूल खुदा के नक्शे कदम पर चले। वो उनके नक्शे कदम पर चलकर अपनी दुनिया संवार सकता है और आखिरत भी संवार सकता है। अब ये जो जलाने की बात होती है, दरअसल इसको सज़ा मिलनी चाहिए और ये आइंदा कभी भी कोई ऐसी कुरान के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद ना हो कि इतनी खिलाफ जो कुरान अमन का पैगाम दे रहा है दुनिया को, जो शांति का पैगाम दे रहा है, जो दहशत गर्दी को दुनिया से ख़त्म कर रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि कुरान दहशत गर्दी का पैगाम देता है। कुरान ने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया है, शांति का पैगाम दिया है। हम इसी के नक्शे कदम पर चलकर अपनी ज़िंदगी को, दुनिया के रास्तों को हम रोशन कर सकते हैं, दुनिया में भी रोशन कर सकते हैं और आखिरत में भी रोशन कर सकते हैं। अब वो लोग जो गुमराही में पड़े हुए हैं, दहशत गर्दी में पड़े हुए हैं, वो समाज में, दुनिया में अगर अमन कायम करना चाहते हैं तो कुरान का दामन थाम लें, रसूल खुदा का दामन थाम लें, दुनिया से दहशत गर्दी ख़त्म हो जाएगी और ये आतंकवादी ख़त्म हो जाएगा। उसकी हिफाजत करने वाला है, हम क्या कर सकते हैं? आज तक उसकी हिफाजत अल्लाह ही ने की है। दुनिया के हाफिज़ों कुरान से, पादरी से हम कहते हैं और ये चैलेंज है कि
कि तू दुनिया के कागजों को जला सकता है, दुनिया के हाफिजों के दिल से हर्फ मिटाकर बिता दे सकता है। ये हमारा चैलेंज है। ये चैलेंज क़यामत तक रहेगा, क़यामत तक रहेगा। और पूरी आलम इंसानियत को, कुरान के पूरे मुखालिफ करने वालों को ये चैलेंज है कि एक हर्फ को तो मिटा कर तो देखे, लेकिन आज तक दुनिया में एक हर्फ को मिटाने वाला न पैदा हुआ, न हो रहा है और न आइंदा होगा। इंशाअल्लाह कुरान पिछली मरतबा भी मुहाफिज था, हाफिज रहेगा, आज भी महफूज है और क़यामत तक इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। नारे तकबीर। कैमरा फोन अखिल बाबू जल्दी आ गया हमारी दीकरी
नूर हक शम्ए इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्ए इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कुरान के बारे में अल्लाह ने ये ऐलान कर चुके हैं कि ओ गुस्ताख प्यादरी, सुन ले, कान खोल कर सुन ले, कुरान का एक हर्फ दुनिया में आज तक पर न मिटा सकता है और न मिटा सकेगा। अंग्रेज ये मजा चख चुका है, अमेरिका ये मजा चख चुकी है। इससे पहले जिसने भी कुरान के ऊपर आंख उठाया है, अल्लाह ने उसको सबक दिया है। मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, अल्लाह को कुरान की हिफाजत के लिए हम अल्लाह चाहे तो कीड़ों मकोड़ों से काम, अल्लाह चाहे तो दरख्तों के पत्तों से काम। हम यहाँ सिर्फ जमा इसलिए हुए हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अगर हमें पूछे तो ओ मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, ओ महुआ के मुसलमानों, कुरान को चलाने की बात हो रही थी, तुम क्या कर रहे थे? हम कहेंगे कि अल्लाह हमने पैगाम आवेदन पत्र के जरिए पहुँचा दिया। पूरे आलम में ये जाएगा इंशाअल्लाह। आज भी कभी भी कोई उंगली उठाएगा तो हम अपनी जान के ऊपर खेल कर उसको हिफाजत के लिए तैयार रहेंगे।